Good morning, dear students. Hope you are enjoying good health and good studies. Okay, let us continue with our chapter number 11, that is light, shadow and reflections. Okay, so far we have tried to cover, हमने कोशिश की है लाइट एंड शैडो को कवर करने की, ठीक है। और लाइट में हमने क्या पढ़ा है, लाइट इज ए एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी, ओके। और लाइट में हमने ये भी पढ़ा था, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस लाइट एनर्जी। देयर आर अदर नेचुरल रिसोर्सेज सोर्सेज आल्सो, firefly, then your this meteors, and but sun is, then we are man-made, natural and man-made. Man-made all other objects which are giving us light, LED, tube light, bulbs, candle, lamp, this and that, जो भी है आपके, जो हम आपको लाइट देते हैं, वो क्या है, man-made sources of light. फिर हमने ये पढ़ा what are the luminous and non-luminous objects. The objects which are having light or they emit light of their own, they are luminous, and the objects which does not have their light, and moon is the best example of non-luminous objects. Others like table, chair, bed, everything, your dressing table, this कुछ भी है आपका, the articles which are lying in your kitchen, house, this and drawing room, bedroom, or store, all are other what? Non-luminous objects. Then we have covered there are certain objects which allow light to pass through the transparent, which allow the light to pass through partially translucent, and there are objects which allow the light to pass, does not allow the light to pass through. They are the opaque objects. Then we have studied that the main property of the what? Light is that light always travels in a straight line. It cannot follow the zigzag path. ठीक है, it always travels straight. चाहे वो एंगल में है, but still it is a straight line, angular straight line you can say, straight line like this. So it cannot move like this, zigzag. Okay, and that we have tried to do with the help of two activities, the 3 cardboard activity and the straight and a bent pipe. आप अगर आप घर में करना चाहो, अगर आप फ्रॉम विलेज कल्चर से हैं, अगर आप घर, आपके घर में अभी भी वो दादी या नानी चूल्हा जलाती है, ठीक है, आपके पास वो होगी फूकनी, जब फायर बुझ जाती है, आग बुझ जाती है, तो दादी या नानी फूक मारती है, फूकनी you can use as a straight pipe, and you can see the burning flame of that, even the uplas and that in chula also the dadi is making dish and chapatis, or candle you can have. Okay, then based on this principle we have tried to study what is a pinhole camera. मैंने आपको एक्टिविटी दे रखी है, संडे आपने बना ली होगी. टुडे इज मंडे and I am giving you the 3rd lecture. As and when you will come and join the schools, it is going to have 10 marks. आपने पिन होल कैमरा बनाना है. Okay, then based on this, pin hole camera is based on this that light travels in a straight line. It makes an image on the back of that camera, and we have studied the characteristics of the image found by pinhole camera. It is inverted, upside down, सिर नीचे, टांगे ऊपर. Real means it can be obtained on the skin. आज हम पढ़ेंगे what is real image and what is a virtual image in detail. आपको you will be in a position to understand properly. Same color, but the size differs. It may be smaller, it may be of same size or bigger size. Then we have, on the basis of the property of this light traveling in a straight line, we have covered how shadows are formed.
shadows are always formed to the opposite of source of light. How shadows are formed? Three conditions are there. There should be a source of light. There should be an opaque object which is hindering the light to pass through. Rather, you can say it is stopping. It is stopping the light to pass through. Opaque object doesn't allow the light to pass through. Then there is a screen on this. The shadow or the image of that black image of that object can be formed. Okay? Then I have just touched umbra, penumbra and all that we will study when we will join. I will show with the pic and the chart also which we are having in the lab. Then we have just touched the point of what? Reflections. Now, lastly, we are going to cover this reflection in two lectures. Two lectures we will cover this reflection. क्योंकि थोड़ा आपको ये डिटेल में बताना पड़ेगा. What is reflection? How a plane mirror behaves? Or spherical mirrors, concave or convex? Spherical means जो गोल होंगे या तो अंदर से पॉलिश्ड होंगे या बाहर से पॉलिश्ड होंगे. ओके, वो convex and concave, but they are known as spherical mirrors. How they reflect the light? What type of image they form? And in fact, I will try to understand you people that what is a image, how it is formed, what are the objects which behave like mirrors, or why this reflection takes place. What is regular reflection, what is irregular reflection, and all that. And we will try to understand with the help of examples that when the image is formed in a mirror, why it is literally reversed. इसको बोलते हैं lateral inversion. कहने का मतलब क्या है? Our right side appears to be left and our left side appears to be right. That also we will discuss and try to understand. Now coming to the reflection. हमने समझने की कोशिश की थी रिफ्लेक्शन क्या है. बाउंसिंग बैक, कमिंग बैक. क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा, यू आर हैविंग ए बॉल. If you strike it on a wall or you strike it on the earth, it bounces back. It is coming back to you. It depends upon the force applied by you. आपने कितनी ताकत लगाई है, कितना वो फोर्स से वो जमीन से टकराती है, उसको वो पीछे की तरफ धकेलती है. वो किसकी वजह से होता है? न्यूटन की वजह से होता है. न्यूटन लॉ की वजह से होता है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें. एक्शन रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट. जितनी ताकत से वो बॉल उसके ऊपर टकराती है, उतनी ताकत से जमीन उसको वापस भेजती है. ठीक है. नाउ बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, similarly, it is bouncing back of the light when it falls on an object. The process of sending back the light rays falling on the surface of the object is called reflection of light. कहने का मतलब क्या है? All objects, this blackboard, this book, this scales, and even this mirror, okay, or this strip of plane mirror. Whatsoever light is falling on them, on any object, it is sent back, bounced back. This sending back of the light by the surface, when the light strikes on the surface, जब लाइट इसमें स्ट्राइक मतलब पड़ती है, तो ये ब्लैक बोर्ड से वापिस भेज रहा है. The process of sending back, वापिस भेजना, the light rays falling on the surface, ये surface है इसकी, is called reflection of
लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इफ द सरफेस on which the light rays are falling is polished or smooth, the sending back of the light rays is perfect, almost 100%। जितनी ज्यादा स्मूथ प्लेन और पॉलिश्ड होगी, उतना ही मैक्सिमम सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज होगा। दैट मीन्स सपोज इफ surface of the object is smooth and polished, it may send 100% of the light back, like mirror. I'm showing you. अब आपको पीछे वाला बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, आपको क्या नजर आ रहा होगा? वीडियो कैमरा, सेल फोन, ट्राइपॉड स्टैंड। लेट मी सी, यस, ट्राइपॉड स्टैंड, सेल फोन, beaker is lying on the table, everything, and even on the back of the curtains and might, if you see clearly, curtains, windows, everything you are in a position to see. This is the surface of this mirror. It is smooth and polished on the back side. Whatsoever light from this cell phone, tripod stand, this table, top, beaker, curtains, windows, उनसे भी लाइट कौन सी आ रही है? जो लाइट इन पे पहले पड़ रही है फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्यूबलाइट्स आर ऑन, विंडो से जो सनलाइट की रेज है वो अंदर आ रही है, डोर इज ओपन, लाइट इज कमिंग इनसाइड, वो इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है, यहां से बाउंस बैक होके मिरर की सरफेस पे पड़ रही है। जितनी भी लाइट पड़ रही है, इट इज 100% बीइंग सेंट बैक बाय द मिरर, ऑलमोस्ट 100%, 99.99999, so you can say 100%, and you are in a position, or you are able to see the what objects. Okay, now reflection. अब हम every time rays of light. What is a ray of light? Ray of light is a beam of light, and ray of light is represented with the help of a line. और एरोहेड लगाते हैं। एरोहेड क्या करता है? जिधर ये एरोहेड है, दैट मीन दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, A, O. That means it is starting from A and reaching the O. Then this arrowhead is on this side. This side. That means after reflection it is traveling from this to this. इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधी एक लाइन, ओके, लाइक दिस। ये ऐसे है, दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड दिस, एंड इफ इट इज लाइक दिस, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड दिस साइड। ओके, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट ए मिरर? ये जो मिरर है आपका, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन, उसकी एक साइड में हम ट्रांसवर्स लाइंस लगा देते हैं। दिस शोज द बैक साइड, ये जो इसके पीछे वाली साइड, बैक साइड ऑफ द मिरर, एंड दिस इज ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस। क्या होता है बच्चों? प्लेन मिरर में वी आर हैविंग ए स्मूथ प्लेन ग्लास, let me have a strip, it will be more clear to you. Smooth glass, back side of that is this smooth glass is silver coated. Silver is the best reflector. जो आजकल आपको बच्चों मार्केट में मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटीज, दिस ग्लासेस आर सिल्वर कोटेड, और अदरवाइज इट कैन बी एल्यूमिनियम कोटेड आल्सो, चीप, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। उसका जो पीछे वाला है वो जल्दी इरेज हो जाता है।
Then this silver coating is again, उसके पीछे क्या करते हैं, रेड कॉपर के साल की कोटिंग कर देते हैं, किसी और साल की कोटिंग कर देते हैं. It can be gray, it can be blue, it can be copper color, or even it can be white also. What is the purpose of this extra coating on the back of that silver coating is, silver coating जो इधर है उसकी बैक पे भी जो हम कोटिंग करते हैं उसका फायदा क्या है, whatsoever light is falling on this polished surface, silver coated polished surface, nothing will go beyond that. इससे, इस कोटिंग से क्या होता है, सारी की सारी लाइट वापस भेज दी जाती है, वापस भेज दी जाती है. सेंट बैक. सो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एक मिरर को, स्ट्रेट लाइन ऑन द बैक वी आर हैविंग ट्रांसफर लाइन, दिस represent the back side of the mirror, and this polished surface which is having a coating of silver and then coating of either copper salt or some other salt, it may be brownish red in color, copper color, or it may be, as I have shown you, white, grey or blue, whatsoever it is, but it should be, so that 100% of reflection takes place, 100% of light rays which are falling on the mirror are sent back. इसको भी अगर हम खोल के देखेंगे डिफरेंट कलर होगा. ये प्लास्टिक का एक शीट लगा हुआ है, यस आई कुड सी हियर इट इज कॉपर कलर्ड, इनसाइड इट इज कॉपर कलर्ड, दिस मिरर. सो नाउ कमिंग टू व्हाट इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. Regular. What is regular and irregular reflection? This is irregular reflection and this is regular reflection. आपने देखा होगा बच्चों, घर के अंदर आपके जो फ्लोरिंग है, if it is cemented flooring, you are not in a position to see anything. You are walking, you are unable to see, you are unable to observe anything. But if your floor is of tiles, polished tiles, or marble, which is a polished one, जिसके ऊपर क्या कहते हैं, रगड़ाई बहुत अच्छी हुई है, उसके ऊपर मोपिंग हुई है, अच्छे से मम्मा ने पोछा लगा रखा है टाइल्स के ऊपर या आपके मार्बल के ऊपर, when you are walking, थोड़ा धुंधली आप अपनी शक्ल उसमें देख सकते हो. You take the example of your shoes. If it is not polished, जैसे ब्लैक पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, अगर तो आपने पॉलिश किया हुआ है, इवन यू कैन सी योर फेस, कंघी कर सकते हो आप देख के. बट इफ इट इज नॉट पॉलिश, नथिंग इज विजिबल. सो पॉलिश्ड सरफेस एज लाइक मिरर एंड अनपॉलिश्ड सरफेस एज लाइक ए पेपर. पेपर और ए मिरर, पेपर और ए मिरर. क्या होता है बच्चों, अब क्या जो पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इक्वल सरफेस है, उस पे जो लाइट पड़ती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल से वो आ रही है, सेम एंगल पे वो बाउंस बैक होती है. इफ इट इज कमिंग स्ट्रेट लाइक दिस, it is sent back straight. If it is coming at an angle, it is sent back at an angle. Since it is a smooth surface, plain है बिल्कुल. But in case of a paper, I have shown this light. This is falling, this ray of light. But in fact, it is not a single ray of light. It is a beam of light. So many rays are there, but it is represented by a single line. वो क्या है बच्चों, जब इस पे पड़ती है, since the surface is not smooth, उसमें से एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है. That means क्या होगा, पेपर पे जब लाइट, बीम ऑफ लाइट पड़ती है पेपर पे या कोई भी ऑब्जेक्ट है,
उस पे जब लाइट, when the light falls on that object which is not smooth like paper, table, chair, anything, it is scattered in all directions. अब क्या होगा बच्चों? ये मिरर है, इसमें आप देख रहे हो सेल फोन की इमेज बन रही है, ट्राइपॉड स्टैंड की, और दूसरी क्या है बच्चों, जितनी भी लाइट ऑफ रे जिस पे आ रही है वो वैसी की वैसी वापस जा रही है, वैसे की वैसे इन सेम पोजीशन दे आर बाउंसिंग बैक एंड एंटरिंग योर आईज. जब सेम रेज ऑफ लाइट when they are touching or falling on a surface of an object which is smooth and highly polished, all of them are sent back. They enter your eyes and you are able to see the object from which the light rays are coming. In fact, in a plane mirror, whatsoever you are able to see, that is the image, जो पिक्चर बन रही है into the mirror, inside the mirror. अब आपने देखा होगा बच्चों, when you see this mirror, cell phone and tripod, or even you may see my face also from an angle, tripod and cell phone, क्या बच्चों, वो इस मिरर के बैक में आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है. इट इज ए इल्यूजन, है नहीं. कैसे? मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, मैं इस पे हाथ कर देता हूं, आपको नजर नहीं आएगा. बैक में अब मैं पकड़ता हूं कुछ भी, मैं उस ट्राइपॉड स्टैंड को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता हूं. क्या आपको नजर आता है मेरा हाथ? क्या आपको नजर आता है कि मैंने सेल फोन को या ट्राइपॉड को स्टैंड को पकड़ लिया? नो. क्या है बच्चों, ये जो इमेज बनती है, इट अपीयर्स टू बी फॉर्म ऑन द बैक ऑफ द मिरर. लेकिन बैक में अगर आप स्क्रीन भी रख दो, कोई पर्दा लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसकी पिक्चर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसकी फोटो उस पर नहीं बनेगी. तो जो प्लेन मिरर है बच्चों, in plane mirror, whatsoever image which are seeing, हमें जो न दिखाई देती है, whatsoever image we see, that is the illusion. It is not a real image. Real image means, हमने वो जो पिन होल कैमरे में मैंने आपको बताया था, हमने यहां पिक बनाई थी, वो स्क्रीन के ऊपर उल्टा पेड़ बना हुआ था. इसके अंदर क्या है? आपको ट्राइपॉड स्टैंड उल्टा तो नजर नहीं आ रहा, सीधा है, डायरेक्ट, ठीक है. तो व्हाट इज दिस इमेज? अब क्या है बच्चों, इमेज कहां बनती है? अब मैंने क्या किया बच्चों, आपके सामने ये बुक ले आया हूं मैं, आपके सेल फोन के सामने. बुक तो आपको नजर आ रही है. रीजन बीइंग, whatsoever light rays are falling on these books, they are bouncing back and entering the camera, lens of the camera, and photo is being taken by the video film making. Camera is on in the cell phone. But इसमें ट्राइपॉड स्टैंड या आपको सेल फोन तो नजर नहीं आ रहा. That means almost all the light rays falling on this piece of paper of the book, they are being scattered. Nothing is bouncing back. इसमें क्या है, कोई इमेज नहीं बन रही. बट इमेज किस में बन रही है? सेल फोन की, ट्राइपॉड स्टैंड की, इस स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस के अंदर. स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, नॉट स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, piece of paper, book, anything. It can be table, it can be chair, anything it can be. So, this, it is known as regular reflection, and this is known as irregular reflection. When the ray of light falling on an object is reflected in the same direction
like this at the same angle, it is not scattered, it is a regular refraction. When the ray of light falling on an object is scattered in all directions, this is the ray of light, it is being scattered this way, that way, this way. Irregular reflection. So regular reflection in a mirror. Irregular reflection, mirror you can say smooth and a polished surface. Okay, so irregular. अब इमेज किस में बन रही है? इल्यूजन किस में हो रहा है? स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस के अंदर हो रहा है, दूसरे में नहीं, बुक में नहीं. सो इमेज किस में बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉर्म ए इमेज. Polished surface, even your still water of a pond also behave like a plain mirror. आप किसी तालाब के किनारे जाइए बच्चों, शाम के वक्त, when the water is still, wind is not blowing, there are no waves, you can have the beautiful picture of trees and other things which are outside the pond. Outside the pond. ठीक है? So, polished surface, water is still. ठीक है? Regular reflection, a regular reflection is produces the image. ठीक है? उसके बाद अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है? So yes, just I want to tell you, ये जो रे ऑफ लाइट बच्चों आ रही है, इससे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. क्यों? ये इंसिडेंट हो रही है, इस पे पड़ रही है, आ रही है. एंड व्हेन इट इज सेंट बैक, और अदर यू कैन से सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज ए रिफ्लेक्शन, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, नाउ कमिंग टू रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. अब क्या है बच्चों? अब हमने देख लिया इल्यूजन है, इमेज बन रही है किसकी? सेल फोन की और ट्राइपॉड स्टैंड की. बट कैन वी, इसके पीछे अगर हम कुछ पर्दा लगा दें, स्क्रीन लगा दें, बोर्ड पे नजर आ रही है ये? नो, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए बोर्ड. सो इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज ए वर्चुअल इमेज. वेयर है जैसे आपका पिन होल कैमरा है, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, व्हाट इज दैट? वो स्क्रीन के ऊपर सीधी पिक्चर बनती है हीरो हीरोइन की. जाते हो ना पिक्चर देखने? आजकल आईपीएल मैचेस में चल रहे हैं, टीवी के अंदर बिल्कुल आपको वो आपके सामने, आंखों के सामने खेलते हुए नजर आ रहे हैं. व्हाट इज दैट? Image, real image, but real image. Okay. Virtual image which appears to be, बनती नहीं है, इसमें बन तो रही है, बट वो बनती नहीं है, मिरर के पीछे, मिरर की बैक साइड पे बनती हुई नजर आ रही है. That is a virtual image. Virtual image which cannot be obtained on a screen, can be seen only by looking into the mirror. मिरर के अंदर देखने पे नजर आती है, अदरवाइज नहीं नजर आती. ये नहीं है कि आप दूर से बैठ के स्क्रीन पे अपनी इमेज को देख लो. लाइट फॉलिंग ऑन ए मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग, नो. सो रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन कैन बी सीन ओनली by looking into a mirror. अब क्या है बच्चों? ये हम क्या बोलते हैं? It is a illusion. It is a illusion. ILLUSION. Seems to be forming behind the mirror. और एक बच्चों ब्यूटी, अब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं. मिरर के सामने हम खड़े होते हैं. We are standing in front of a mirror. You imagine that you are standing in front of a mirror of the dressing table being used by your mom. बड़ा लंबा चौड़ा होता है ना, like this.
वेट बच्चों, आई एम जस्ट I could not get it clean because servants are not coming properly. इतना बड़ा होता है, देखा ना आपने, थोड़ा इस पे डस्ट है इसलिए आपको इमेज साफ नहीं नजर आई. ओके, आई गॉट दैट. वो जब मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों, दिस इज ए ग्राउंड ग्लास जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बता रहा था मैं आपको. नजर तो आएगी आपको मेरी शक्ल हल्की फुल्की, ब्लर्ड लगता है इस ग्लास के पीछे कोई कुछ है. कौन है, कैसा है, नहीं मालूम. ठीक है, बट दिस इज ए प्लेन ग्लास. दिस इज ए प्लेन ग्लास. यस, प्लेन ग्लास. यू कैन सी माई फेस क्लियरली. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट. ओके, चलिए, coming back again to what we were discussing about. Yes, mirror and हाँ, अब क्या है बच्चों, when you are standing in front of the dressing table mirror, have you ever observed some difference in your face, in your body, the color of clothes you are wearing? Have you ever observed? Yes or no? No. Big no. आपकी शक्ल जैसी है वैसी ही नजर आती है. मेरा रंग थोड़ा ब्लैकिश है, वो ब्लैकिश ही नजर आएगा, व्हाइट नहीं हो जाएगा और डार्क नहीं हो जाएगा. इफ आई एम wearing plain shirt like today, cream color, it will be cream color only. It will not become a check shirt. कहने का मतलब क्या है, मेरा फेस वैसा नजर आता है. द क्लोथ कलर्स आई एम wearing, इट appears टू बी सेम. लेकिन क्या आपने कोई डिफरेंस नोट किया है उसमें बच्चों? किया है डिफरेंस नोट आपने? ओके, लेट मी टेल यू. इफ यू हैव नॉट नोटिस, इफ यू हैव नोटिस, वेल एंड गुड. एंड इफ यू हैव नॉट नोटिस, लेट मी टेल यू. क्या होता है बच्चों, आपको आप खुद नजर आ रहे हो. आपको आप खुद नजर आ रहे हो. ठीक है, सपोज अब क्या है, मिरर है, मिरर में मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूं, या आप मिरर के सामने खड़े हैं, आप अपनी शक्ल देख सकते हैं. अब क्या है बच्चों, मिरर में जो इमेज बन रही है वो मुझे देख रही है, मैं उस इमेज को देख रहा हूं, मैं उसको हम एक दूसरे को देख रहे हैं. उसका फेस इस तरफ है, मेरा फेस इस तरफ है. दैट मीन्स फेसेस आर अपोजिंग ईच अदर, पर्सन इज सेम, ह्यूमन बीइंग इज सेम. मैं वही हूं, आप वही. अब क्या होगा बच्चों, जब मैं ये देखो, मैं आपके सामने घूमूंगा, ये मेरी कौन सी है, लेफ्ट साइड है. ठीक है, अब मेरी आपको बैक नजर आएगी, एंड माई लेफ्ट साइड व्हेन आई विल टर्न एट 180 डिग्री एंगल, इट विल बिकम व्हाट, माई राइट साइड. My right side. Now my right side when I will turn and again show you the face will become my left side. अब क्या होगा बच्चों, जब मेरी फोटो बन रही है, मेरी इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, वी आर फेस टू फेस. जब मैं अपना ये लेफ्ट हैंड रेज करूंगा तो मेरी इमेज आपको क्या लगेगा, राइट हैंड रेज कर रही है, राइट हैंड रेज कर रही है, हालांकि वो मेरा लेफ्ट हैंड ही है. और जब मैं इधर हूं, मैं अपना राइट हैंड रेज कर रहा हूं, और वो अपोजिट है, फेस इस तरफ है. तो जब मैं ऐसे घूमूंगा तो उस इमेज का हैंड कौन सा हो जाएगा, वो राइट की जगह लेफ्ट, क्योंकि आप इधर से देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि वो अपना लेफ्ट साइड रेज कर रहा है. यानी कि आपको जो नजर आएगा, क्या आएगा, लेफ्ट साइड विल अपीयर टू बी राइट एंड राइट साइड विल अपीयर टू बी लेफ्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन. लिटरली रिवर्स हो जाते हैं. आया समझ में? क्या है बच्चों, फेस टू फेस इमेज. आप अपनी फोटो देख रहे हैं, खड़े होना अपना मामा के ड्रेसिंग टेबल के सामने,
देखना अपने आप को, आपको अपनी शक्ल दिखाई दे रही है। कहने का मतलब क्या, आप अपना हाथ हिलाते हो वो भी अपना हाथ हिलाता है, आप मुंह चलाते हो वो भी अपना मुंह चलाता है। कहने का मतलब क्या है, वो जो शख्स जो इमेज बन रही है वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। आप किसी बच्चे को खड़ा कर लीजिए अपने सामने, अपनी दीदी को खड़ा कर लीजिए, अपने भैया को खड़ा कर लीजिए। अब आमने सामने है, यू रेज योर राइट हैंड और उसको बोलो आप अपना राइट हैंड रेज करो। उसकी साइड कौन सी हो गई, ऐसे, इस इधर वाला हाथ करेगा ना। सेम वे जब इमेज बनती है, फेस टू फेस है, राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाती है, लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाती है। पॉकेट पे कुछ लिखा हो ना, जैसे आपका स्कूल का वो लोगो बना होता है, वो भी उल्टा हो जाता है। इफ यू वांट टू सी, ओके, नो कैमरा में तो नहीं आएगी, लेंसेज है उसमें। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी आजकल देखा होगा बच्चों, आजकल कोविड-19 है, पेंडेमिक है, पर्टिकुलरली इन द सिटी एरिया। हर आधे घंटे में 15 मिनट में कोई ना कोई एम्बुलेंस जा रही होती है। आपने देखा बच्चों, उसके जो विंड स्क्रीन होती है उस पे एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है, A-M-B उल्टा, U फिर ठीक, L उल्टा, E उल्टा, N उल्टा, N ऐसे होता है, बट हियर इट इज लाइक दिस। Why? क्या है बच्चों, एम्बुलेंस इज टू बी गिवन ए थॉरो वे। उसके जब वो जा रही है, पेशेंट उसके अंदर है, उसे रास्ता मिलना चाहिए। जब ये एम्बुलेंस लिखा हुआ विंड स्क्रीन पे, आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे है आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, उसके जब स्क्रीन उस पे मिरर में, प्लेन मिरर में जब इसकी फोटो आएगी ऐसे, वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। Sorry, I think I have also done a blunder. It should start like this. It should start, A should come here, M should come here, B should come here like this. Sorry, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें आपको लिख के बताऊंगा। क्या है बच्चों, ये वाली साइड इधर चली जाएगी और आपको आपके मिरर में, बट अल्फाबेट्स विल बी लाइक दिस, अल्फाबेट्स विल बी लाइक दिस। वो बना रहा था मैं, अल्फाबेट्स तो बन गए, वो मेरे भी दिमाग से निकल गया। A is on this side, will go on this side. जब आप इधर आपके पीछे से आ रही है तो आपको सीधा नजर आना चाहिए ना, A should come on this side, A should come on this side. Okay, चलो। So this is what? Just let me see here. कल किया सही किया? No. Yes, it should come this way. It should come this way. ठीक है, it should be like this. Reverse हो जाएंगे alphabets, nothing, no problem. But try to understand. Try to understand. क्या है? B ऐसे है, वो ऐसे हो जाएगी। U तो U रहेगा, L ऐसे हो जाएगा। A में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे उसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो। M में भी चाहे ऐसे कर दो वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं है। E ऐसे हो जाएगी, N ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा, C ऐसे हो जाएगी, तो एम्बुलेंस नजर आएगी, एम्बुलेंस नजर आएगी। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन। और sideways it is reverse. Left side appears to be right and right side appears to be left. So I think it is more than sufficient for today. Let's finish here. Go through any problem, you can contact me. Any problem, you can contact me. Last and the final lecture, how reflection takes place and what is periscope and what are the characteristics, yes, what are the characteristics of the image formed
in a plane mirror. That also we will discuss. In next lecture we will do that. With this we end today's topic, today's lesson. Thank you. Enjoy your day. Enjoy your study. Any problem, contact me.